Hello everyone, welcome to AGRICULUM. Let's start with today's lecture on production technology for vegetable and spices. In today's lecture, we'll be discussing about cultivation of cauliflower. In brief, we'll study about its origin, area, climate, soil, improved varieties and cultivation practices, as well as physiological disorders. Let's start with its botanical classification. Cauliflower's scientific name or botanical name is Brassica oleracea var. Botrytis L. Let's break it down. L का क्या मतलब है? Linnaeus is the full form of L. और Linnaeus कौन है? Scientist जिन्होंने ये nomenclature दिया था कि genus पहले लिखेंगे, species बाद में लिखेंगे, सब species उसके बाद. तो उन scientist के name का short form में हम L लिखते हैं. Next is VAR var. What is this? It is variety. ये हम लिखते हैं जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, ब्रोकली हो गया, ये सब सेम जीनस और सेम स्पीशीज के डिफरेंट क्रॉप्स है. ओलेरेसिया ही इनकी स्पीशीज है, ब्रासिका इनकी जीनस है, लेकिन इनकी वैरायटी डिफरेंट है. तो सेम जीनस और सेम स्पीशीज की जब वैरायटी या क्रॉप्स होती है डिफरेंट तो उसमें हम वार लिखते हैं यानी कि वैरायटी और आगे उसका साइंटिफिक नेम. तो ये हो गया बोटानिकल नेम का ब्रेकडाउन. नेक्स्ट इज कॉलीफ्लावर की फैमिली विच इज ब्रासिकेसी. ओरिजिन है मेडिटेरेनियन रीजन. नाउ टाइप्स ऑफ कॉलीफ्लावर कल्टिवेटेड इन इंडिया. In India, there are two types of cauliflowers that are cultivated. First one is Indian type and second one is European type. Indian type को हम tropical type भी बोलते हैं और heat tolerant varieties भी बोलते हैं. These are suited for warm climates. European type को हम बोलते हैं temperate varieties and often also known as snowball types या फिर late maturing types. These are better suited for cooler conditions. Cauliflower का importance and uses. Cauliflower vitamins, minerals और fiber का rich source होता है which makes it highly nutritious. Next is it supports digestion and boosts immunity. कैसे? Because it has high content of antioxidants. It is low in calories and therefore it is ideal for weight loss and healthy diets. Commonly it is used in Indian dishes, curries, pickles या फिर पकोड़े बनाते हैं गोभी के तो snacks. It can be cooked in various ways. Boil कर सकते हैं, roast कर सकते हैं, fry भी कर सकते हैं and we can even mash the cauliflower. It is grown in both warm and cool seasons due to diverse varieties which means year-round production होती है cauliflower की. India even exports cauliflower which supports the agriculture-based economy. Next is area and production. Cauliflower is widely grown across India, especially in states like Uttar Pradesh, West Bengal and Bihar. India is one of the leading producers of cauliflower in the world. Statistically, total area under cauliflower cultivation in India is around 4.5 to 5 lakh hectares. Annual production India में होती है approximately 9 to 10 million tons तक. Cauliflower is grown throughout the year using mid, early and late varieties. Its high yield and demand make it a profitable crop for Indian farmers. इसलिए ज़्यादा grow करते हैं. Improved varieties and farming practices have boosted cauliflower production in recent years. बोथ डोमेस्टिक एक तो डोमेस्टिक कंजम्पशन होती है एज वेल एज एक्सपोर्ट होता है जिस वजह से इसकी प्रोडक्शन ग्रोथ ज़्यादा हो रही है. नेक्स्ट अप इज सॉइल रिक्वायरमेंट्स फॉर कॉलीफ्लावर. सॉइल रिक्वायरमेंट्स पे ध्यान देंगे बिकॉज बाकी सारी क्रॉप्स से इसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी डिफरेंट है और इंटरेस्टिंग है. कॉलीफ्लावर का क्या होता है कि इट कैन बी ग्रोन इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल्स एज लॉन्ग एज सॉइल इज फर्टाइल एंड होल्ड्स वाटर वेल. नेक्स्ट इज क्योंकि ईयर राउंड कल्टीवेशन हो रही है तो जो मिड सीजन और लेट वेराइटीज़ हैं और जो अर्ली वेराइटीज़ हैं उनके लिए सॉइल की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है. जैसे मिड सीजन और लेट वेराइटीज़ के लिए बेस्ट सॉइल होती है मीडियम टू हैवी सॉइल क्योंकि वो अच्छे से वाटर रिटेन करती है. नेक्स्ट इज जो अर्ली क्रॉप होती है उसके लिए हमारे लिए सूटेबल होती है लाइट टू मीडियम लाइट सॉइल. क्यों? क्योंकि जब रेनी सीजन आता है अर्ली क्रॉप प्रोडक्शन के टाइम पे तो वाटर ड्रेनेज जो होता है वो लाइट और मीडियम लाइट सॉइल में इजी होता है और इसकी वजह से हमारी क्रॉप अच्छे से ग्रो कर पाती है. वाई? बिकॉज स्टैंडिंग वाटर इन द फील्ड कैन हार्म प्लांट ग्रोथ एंड लीड टू पुअर यील्ड. नेक्स्ट इज आइडियल सॉइल पीएच कितना होगा? न्यूट्रल 6 to 6.5. माइल्डली alkaline. Climate requirements for
cauliflower. Climate plays a major role cauliflower के growth में, especially when the plant moves from juvenile to reproductive stage. That is, leaf growth से जब curd formation होगा तब हमारा climate बहुत important होता है. Seed germination के लिए the temperature that is best suited is 10 to 21 degrees Celsius, which is a very wide range. Cauliflower is very sensitive to temperatures. Again, growth stages के time पे बहुत different और varying temperature चाहिए होता है. जैसे कि entire growth stage में 5 to 30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रेंज होता है जो कॉलीफ्लावर एक्सपीरियंस करता है. जो यंग प्लांट्स हैं दे ग्रो बेस्ट एट 23 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज, जो कि वेजिटेटिव स्टेज होता है. फॉर लेटर स्टेजेस टेम्परेचर होना चाहिए 17 to 20 डिग्री सेल्सियस, लोअर होता है ये. रिप्रोडक्टिव स्टेज या फिर लेटर स्टेजेस में आप देख रहे हो टेम्परेचर लोअर एक्सपीरियंस हो रहा है, और जब ग्रोथ स्टेजेस है तब हमारे को टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए. क्या है नेक्स्ट पॉइंट कि अगर टेम्परेचर इफ द टेम्परेचर स्टेज टू हाई तो जो प्लांट है इट विल कीप ग्रोइंग लीव्स और कर्ड फॉर्मेशन नहीं होगा. कर्ड फॉर्मेशन के लिए थोड़ा टेम्परेचर कम चाहिए. लेट सीजन वेराइटीज़ जो है उनको 15 to 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए गुड ग्रोथ के लिए, बट ये सेम टेम्परेचर 15 to 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो अर्ली वेराइटीज़ हैं उनमें ट्रिगर कर देगा कर्ड फॉर्मेशन. सो टेम्परेचर भी दोनों टाइप की वेराइटीज़ के लिए डिफरेंट है. Big temperature changes during curd formation can reduce the quality of the curd. Physiological disorders भी experience हो सकते हैं. Next is nursery raising. First is seed rate for cauliflower per hectare. Different kinds of varieties के लिए different kinds of seed rate है. Early variety का seed rate होता है 600 to 750 grams, ये per hectare है. Mid to early season varieties का है 500 grams. मिड लेट वेराइटीज़ का है 400 ग्राम्स एंड लेट वेराइटीज़ का है 300 ग्राम्स. नेक्स्ट इज प्लांट स्पेसिंग. अर्ली वेराइटीज़ में स्पेसिंग होती है 45 सेंटीमीटर्स टू 30 सेंटीमीटर्स. मिड एंड लेट सीजन वेराइटीज़ में होती है 60 सेंटीमीटर्स इंटू 45 सेंटीमीटर्स. नेक्स्ट इज सॉइल प्रेपरेशन एंड ट्रांसप्लांटिंग. द फील्ड शुड बी वेल प्रिपेयर्ड और फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉइल प्रेपरेशन इज प्लोइंग. तो फर्स्ट मल्टीपल प्लोइंग्स होती है. फर्स्ट प्लोइंग जो होती है उसको सॉइल टर्निंग प्लो से करें तो हमारे लिए बेटर रहेगा. फॉलोड बाय 4 to 5 प्लोइंग्स होनी चाहिए विच कैन बी डन विद लोकल और कंट्री प्लो. आफ्टर प्लोइंग सॉइल शुड बी लेवल्ड एंड ब्रॉट टू अ फाइन टिल्थ, मतलब उसका फाइन लेवल कर देना है. आफ्टर दैट वेल रॉटन FYM डालना है ड्यूरिंग सॉइल प्रेपरेशन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी. Proper drainage is essential, especially for early and mid-season crops that coincide with the rainy season. इसलिए drainage proper होनी चाहिए ताकि rainy season में water logging ना हो जाए. Early season crops should be transplanted on ridges या फिर raised beds होते हैं in order to avoid water stagnation. Mid और late varieties को आप flat beds में transplant कर सकते हो. और जो transplanting है वो किस टाइम पे होनी चाहिए? लेट आफ्टरनून में, ताकि प्लांट को शॉक ना लगे और हीट की वजह से लॉसेस ना हो. दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.